हेलो एवरीवन, दिस इज़ पारुल गोयल फ्रॉम इन्फिनिटी विजन। आज का ये हमारा सेशन एनटीएससी स्टेज 2 सेशन है एंड एज वी नो कि पेपर कंप्राइजेज सैट एंड मैट एंड इन द सेशन ऑफ सैट यू हैव द साइंस सब्जेक्ट एज वेल एंड साइंस सब्जेक्ट में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चंस यू पीपल गो थ्रू। तो आज इस सेशन में हम बायो से रिलेटेड बायो सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे दैट इज़ एक्सपेक्टेड इन NTSC Stage 2 2021। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चंस। लेट्स बिगिन। आवर क्वेश्चन नंबर 1 says the guard cells are also capable of photosynthesis because they have, है ना, we know the guard cells are present in the epidermal layers, the uppermost covering of the leaves। तो वहाँ हमारे गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं दैट गार्ड्स द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, दैट इज द पोर्स प्रेजेंट ऑन द surface of the leaf. That is why they are called as the guard cells. Now we are saying that guard cells are also responsible for the process of photosynthesis. We know what is photosynthesis, that is plant prepare its food, है ना, and releases the survival gas, that is oxygen for us, purifies the atmosphere। ठीक है, वेरी बेसिक प्रोसेस, हम बहुत छोटी क्लासेस से इस प्रोसेस के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दैट गार्ड सेल्स इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू डूइंग फोटोसिंथेसिस। किस वजह से? वाई? बिकॉज दे हैव ऑप्शन नंबर 1 साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल्स, or they have cytoplasm nucleus centrosome, cytoplasm nucleus chloroplast, or cytoplasm nucleus chromosomes, है ना। तो we should know the organelle that is responsible for the function of photosynthesis present in the plant cells, है ना। तो photosynthesis के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए पहले कि कौन सा organelle plant cell में present होता है to perform the process of photosynthesis। ठीक है, तो ऑप्शन 1 says cytoplasm nucleus centriole। centriole एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो अगर सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा है कोई भी ऑर्गेनल, it is not responsible for photosynthesis and moreover it is absent in plant cell, and we know that plant cell performs the process of photosynthesis because plants are autotrophic in nature, they are the producers। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया बिकॉज सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट। सेंट्रियोल तो वैसे भी प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं है। सेम गोज टू ऑप्शन बी, दैट इज साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस एंड सेंट्रोसोम। सो दीज सेंट्रियोल्स आर एक्चुअली प्रेजेंट इन द सेल ऑर्गेनल सेंट्रोसोम विच इज अगेन एब्सेंट इन एनिमल सेल, सॉरी इन प्लांट सेल। तो ये सेल डिवीजन की बात करते हैं, ये भी सेल डिवीजन में हेल्प करेगा and it is again absent in plant cell। तो plant cell में तो present ही नहीं है centriole और centrosome। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 की बात कर लेते हैं पहले, that is cytoplasm nucleus and chromosome। yes, all these structures are present in plant cell, but then the cell organelle which is responsible for the function of photosynthesis is not chromosomes. These carries the hereditary units, that is the genes which transmits the information from the parents to their offspring, है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो गया। The cell organelle which is responsible for the function of photosynthesis is chloroplast, है ना। We know that the plant has a cell organelle called as plastids। तो प्लास्टिड्स प्लांट सेल का एक स्पेसिफिक फीचर है जो कि सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स के प्लास्टिड्स प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट एक्चुअली स्टोर्स फूड फॉर द प्लांट, है ना, एंड they are colorless। तो हम ये ध्यान रखेंगे बात। Chromoplast gives different colors to the plant। different colors plant parts को provide करता है, जैसे red, brown, orange, yellow। Chloroplast के पास क्या है? it is the green pigment, having green pigment which is chlorophyll, which is actually necessary for the function of photosynthesis। We know that photosynthesis occurs in 2 steps, light reaction and dark reaction। ठीक है, तो light reaction initiates with the activity of the chlorophyll present in the chloroplast।
ठीक है, और ऑप्शन नंबर थर्ड में क्या है आपका, वो सेल ऑर्गेनल है which is actually responsible for the function of the photosynthesis. ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में दो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इंफॉर्मेटरी थिंग्स हैं, यू शुड नो इट. grana and stroma. Grana is the site of light reaction and stroma is the site of dark reaction. ठीक है, तो ये थोड़ी सी छोटी छोटी बातें हैं जो हमें याद रखनी है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में हैव पिगमेंट एंड ये क्लोरोफिल की जो बात कर रहे हैं हम, दिस क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन दी ग्राना पार्ट ओनली. दैट इज वाई लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट. हेंस आवर करेक्ट ऑप्शन इज this one, option number 3. Guard cells have all these three: cytoplasm, nucleus and chloroplast. That is why they are capable of performing the function of the photosynthesis for plants. ठीक है, तो आई गेस समझ आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था. Okay, moving on to next one, again a simple one. In almost all Indian metropolitan cities like Delhi, the major atmospheric pollutant, है ना, major atmospheric pollutant पूछ रहे हैं, हमें पता है कि क्या मेट्रोस की हालत है इस वक्त, दे हैव सो मच पोल्यूशन, है ना. तो मेजर पोल्यूटेंट की अगर हम बात करें, इट इज ऑप्शन नंबर 1, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर एंड नाइट्रोजन, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड हाइड्रोजन. बिल्कुल सही चेष्टा बेटा, बिल्कुल ठीक आंसर किया आपने. सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, एक्चुअली दीज आर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड मैटर which remain suspended in the air. And this is basically because of the combustion processes that we do. ठीक है, तो the suspended particulate matter is the major pollutant that is present in the atmospheric pollution and is responsible for the major pollution of metropolitan cities. ठीक है, चलिए moving on to next one. Vascular cryptogams or seedless vascular plants belongs to, है ना. तो ये हमने कई बार इस क्वेश्चन को पहले भी डिस्कस किया है इन प्रीवियस सेशंस, बिकॉज मेनी अ टाइम्स वील फाइंड दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इन प्रीवियस एग्जामिनेशन पेपर्स ऑफ एनटीएससी स्टेज 2, है ना. तो थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं दैट अगर हम प्लांट किंगडम की बात करें, येस यूर राइट चेष्टा, एब्सोल्युटली राइट बच्चे. तो प्लांट किंगडम इज बेसिकली, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे बट अ लिटिल समराइज्ड मैनर, है ना. दो टाइप में हम कैटेगराइज कर सकते हैं ऑल दी प्लांट्स, क्राइप्टोगैम्स एंड फिनारोगैम्स. ठीक है, और क्राइप्टोगैम्स में आपके कौन से प्लांट्स आएंगे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा. ठीक है, बट दी फिनारोगैम्स की बात कर लेते हैं. These are the gymnosperms and angiosperms. तो एक तो छोटा सा आपको ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए फॉर दिस क्वेश्चन. Now they are asking vascular cryptogams. This is what I have written here, that is cryptogams. Vascular means they should have vascular bundles, and the vascular bundles of the plants are xylem and phloem that helps in the conduction of the materials that is present in the plant, है ना. तो थैलोफाइटा के पास vascular bundles नहीं होते, खत्म कहानी, यहाँ पे कुछ प्रेजेंट नहीं है. ब्रायोफाइटा के पास भी नहीं होते. यस, टेरिडोफाइट्स के पास होते हैं. तो आपको क्वेश्चन में अगर इतना मालूम है कि दैट दीज थ्री बिलोंग्स आर क्राइप्टोगैम्स एंड टेरिडोफाइट्स ओनली हैव वैस्कुलर बंडल्स, तो आपको ऑप्शन सही मिल जाएगा. स्पर्मेटोफाइटा यानी कि स्पर्म्स प्रोड्यूसिंग प्लांट, so these are seed producing plants actually, so these are gymnosperms and angiosperms. तो इससे स्पर्मेटोफाइटा तो पहले ही ऑप्शंस में रेस में ही नहीं है, हम पहले ही उसको एलिमिनेट कर देते हैं. फर्स्ट थ्री आर दी क्राइप्टोगैम्स, among which option number 1 bryophytes, option number 3 thallophytes. These don't have vascular bundles. ठीक है, टेरिडोफाइट्स के पास वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे एक बात ये भी ध्यान रखनी है दैट दे हैव इनकम्प्लीट वेस्कुलर बंडल्स, दे डोंट हैव कंप्लीट वेस्कुलर बंडल्स. ठीक है, तो टेरिडोफाइट्स क्योंकि वैस्कुलर बंडल्स हैं इसमें, तो वैस्कुलर क्राइप्टोगैम्स हो गए. एंड बिकॉज दीज थ्री आर स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, दीज आर नॉट सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट, दीज आर स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स. तो हमारा ऑप्शन क्या बन गया, this is pteridophyte. So correct option is pteridophyte. ठीक है,
ध्यान रखेंगे हम ये बात. वैस्कुलर क्राइप्टोगैम सेरेडोफाइट्स सीडलेस की बात कर रहे हैं. वैसे तीनों ही सीडलेस हैं बिकॉज बोथ ऑल द थ्री आर क्राइप्टोगैम्स, है ना. लेकिन क्योंकि हम वैस्कुलर क्राइप्टोगैम्स की बात कर रहे हैं, सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी टेरिडोफाइट्स. आई गेस समझ आ गया होगा सबको. ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. Which type of epithelial tissue lines the inner surface of the trachea? है ना, we have different kind of epithelium in our different parts of the body. तो आपसे पूछ रहे हैं, yes चेष्टा, you're right बेटा. कौन सा epithelium is present? ऑप्शन 1 है हमारे पास squamous, cuboidal, second, third line cartilage और फोर्थ सीरोस्ट्राटिफाइड सिलिएटेड कॉल्यूमिनार, है ना. एक तो हम ध्यान रखेंगे कॉल्यूमिनार सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है. आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4. सिलिएटेड मतलब सीलिया भी प्रेजेंट है. व्हाट इज सीरोस्ट्राटिफाइड मीन्स? सीरो मीन्स फॉल्स, right, and stratified means many layers. So why is it saying pseudo-stratified? Because actually the epithelium is like this. The basement membrane and the cells are at different heights. Different heights पे होते हैं cells, इसलिए actually it is a single layer of cell, but it appears to be multi-layer because of the presence of the cells of different size. ठीक है, छोटे बड़े सेल्स दोनों टाइप के होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है दैट दिस इज मल्टी लेयर्ड if we see under the microscopes, but actually this is only one layered cell, hence this is called as pseudo-stratified. मतलब कि उनके पास बहुत सारी layers नहीं है, but it appears to be multi-layered, hence it is pseudo-stratified, but actually it is a single layer of cells. ठीक है, तो सीरोस्ट्राटिफाइड के सरफेस पे सीलिया प्रेजेंट भी होती है, एंड दिस सीलिया इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द इनर टू द आउटर साइड. ठीक है, तो दो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ट्रैकिया इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, and throughout your respiratory tract is pseudostratified epithelium is present, but in some parts of your respiratory tract it becomes ciliated to move out the dust particle. हमेशा ध्यान रखेंगे हम ये बात कि cilia moves only in one direction. Cilia moves the particles in one direction. अगर इस तरह से मूव हो रही है चीज़ें तो यहीं मूव होंगी, इधर मूव हो रही है तो इधर ही मूव होंगी. दोनों डायरेक्शन में कभी भी cilia चीज़ों को मूव नहीं करता. Keep it in mind, this is very important point. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि it is lined in the trachea. So basically, it is cilia is present to move out the dust particles. In the that is ciliated columnar is present line the trachea. ठीक है, तो respiratory system में pseudostratified epithelium present है, but in some parts it becomes ciliated to move out the dust particles or foreign particles. So हमारा correct option will be pseudostratified ciliated columnar epithelium. ठीक है, आई गेस समझ आ गया होगा अच्छे से. चलिए, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन. Brunner's gland are found in which one of the following, है ना. Submucosa of stomach, mucosa of ileum, submucosa of duodenum, mucosa of esophagus. अब देखो, अगर आपने एलिमेंट्री कैनाल का हिस्टोलॉजी पढ़ा है, yes चेष्टा, you're right, you're learning the subject, that means, है ना. These type of questions already we have discussed so many times earlier in a different manner, because these questions are already come in the previous exams of the NTSC and KVPY, right. तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि human physiology, plant physiology, biomolecules, these topics are utmost important for any competitive exam in case of bio subject. ठीक है, तो आप देखो मैक्सिमम क्वेश्चंस आर टेकन फ्रॉम दीज टॉपिक्स ओनली, है ना. तो अगर आपने हिस्टोलॉजी पढ़ी है ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, तो आप इस क्वेश्चन को झटपट आंसर कर दोगे. क्या है हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल? बेसिकली देयर आर 4 लेयर्स. तो अगर हम आउटर टू इनर की बात करें, आउटर मोस्ट इज सिरोसा, ठीक है. उसके बाद हमारे पास कौन सी लेयर है? मस्क्यूलैरिस. Muscularis have 2 layers, outer longitudinal, ठीक है, and inner circular. Next to this is submucosa, right, and the innermost is mucosa.
तो आपसे पूछा है कि पहले तो ब्रूनर ग्लैंड्स कहाँ पर हैं और कौन सी लेयर पे प्रेजेंट है ऑफ द हिस्टोलॉजी ऑफ द लेयर्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. तो इट इज सबम्यूकोसा ऑफ स्टमक, म्यूकोसा ऑफ इलियम, सबम्यूकोसा ऑफ डिओडेनम, म्यूकोसा ऑफ ईसोफेगस. सो बेसिकली दिस इज प्रेजेंट एंड ऑफ सबम्यूकोसा. और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सबम्यूकोसा ऑफ डिओडेनम. Throughout your alimentary canal, these 4 layers are present. You know, outermost is serosa and the innermost is mucosa. है ना? These gives us different things and modified at different regions to form the different kinds of glands so that they give these their respective secretions for our digestion. So basically, Brunner glands कहाँ पे present है? Brunner glands present है submucosa and mucosa of the duodenum. है ना? म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा, इन दोनों ही लेयर्स पे डिओडेनम की क्या प्रेजेंट है? आपके ब्रूनर्स ग्लैंड. बट क्वेश्चन में द ऑप्शन इज गिवन सब म्यूकोसा ऑफ डिओडेनम, सो डेफिनेटली विल मार्क इट एज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज इट इज प्रेजेंट एट द सब म्यूकोसा ऑफ डिओडेनम. ठीक है, तो वहां पे क्या करते हैं ये काम हमारे लिए, ये भी हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे. व्हाट दे डू फॉर अस, दे सीक्रीट म्यूकस एंड डाइजेस्टिव जूस को भी सीक्रीट करते हैं. बट बेसिकली दे मेन पार्टिसिपेट इन द सीक्रीशन ऑफ द म्यूकस. दैट इज व्हाई दे आर प्रेजेंट एट द म्यूकोसा एंड द सबम्यूकोसा ऑफ डिओडेनम. ठीक है, तो एट डिफरेंट रीजन वील फाइंड दैट दीज लेयर्स म्यूकोसा एंड सबम्यूकोसा आर मॉडिफाइड टू फॉर्म द डिफरेंट ग्लैंड्स to provide certain secretions or protection throughout your alimentary canal. ठीक है, समझ आ रही है बात? It was a simple question अगर आपने human physiology थोड़ा सा रीड किया है तो. ठीक है, and NCERT is the best book for your NTSC stage 2, 1 and KVPY exams. कहीं बाहर नहीं जाना हमको इधर उधर. We have to stick to our NCERT and that's how you'll get the answers of all the questions which is coming in your examination. ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं. अगेन ह्यूमन फिजियोलॉजी, सर्कुलेटरी सिस्टम. In order to move from the right side of the heart to the left side of the heart, blood must pass through the. आप देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. अगर आपने सर्कुलेशन पढ़ा है, आई एम नॉट ड्रॉइंग द डायग्राम ऑफ द हार्ट बट वी नो दैट देयर आर 4 चैम्बर्स इन आवर हार्ट. है ना? दिस इज द राइट साइड एंड दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट. ठीक है, अपर आर दी स्मॉलर रिसीविंग चैम्बर्स एंड दीज आर द ऑरिकल्स. ठीक है, लोअर आर दी लार्जर पंपिंग चैम्बर्स एंड दीज आर द वेंट्रिकल्स. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? राइट ऑरिकल और एट्रियम, राइट वेंट्रिकल बिकॉज दिस इज द राइट साइड. देन दिस वन इज द लेफ्ट एट्रियम और ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल. इस क्वेश्चन के लिए हमें ये जरूर मालूम होना चाहिए दैट विच साइड ऑफ द हार्ट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. अगर आपको ये बात मालूम है, डेफिनेटली यू विल रीच टू द राइट ऑप्शन. ठीक है, तो हमें क्या मालूम होना चाहिए? राइट साइड ऑफ द हार्ट ऑलवेज कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. हमेशा ये क्या कैरी करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. एंड लेफ्ट वन ऑलवेज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. राइट. वन मोर थिंग यू शुड नो, राइट साइड के हार्ट को हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी हार्ट. राइट, एंड द लेफ्ट वन साइड इज कॉल्ड एज सिस्टमिक हार्ट. तो अगर आपने क्लास 10th डबल सर्कुलेशन पढ़ा है, झटपट इसका आंसर दे दोगे. कैसे दे दोगे? अब देखो ना क्या पूछा आपसे क्वेश्चन. इन ऑर्डर टू मूव फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट टू द लेफ्ट साइड, है ना, ब्लड पासिस थ्रू दी. जरूर एक जगह से पास होगा. क्यों होगा? क्योंकि अगर हम राइट की बात कर रहे हैं तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. इट हैज टू बी ऑक्सीजनेटेड बिफोर रीचिंग टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, है ना. और ऑक्सीजनेशन कहाँ पे होगा ब्लड का? टू द लंग्स, बिकॉज वी नो दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस एट द एल्व्यूलॉय स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द लंग्स. ठीक है, तो राइट साइड यहाँ से एक आर्टरी निकलती है फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल और उस आर्टरी को क्या बोलते हैं हम? इट इज पल्मोनरी आर्टरी. एक्सेप्शन है, आर्टरी ऑलवेज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड बट द एक्सेप्शन इज पल्मोनरी आर्टरी दैट कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड from the right ventricle and opens into your lungs for the oxygenation of blood, and then when once blood is oxygenated it carries
टू दी अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया हमारा, तो कहाँ पे आएगा हार्ट के किस चैम्बर में आएगा? इट विल come to this chamber of the heart, that is left auricle, through the pulmonary veins, and these veins are arising from the lungs and carries oxygenated blood to the left auricle, because we know left carries oxygenated blood, number one. Number two, we also know that auricles are the receiving chambers, so definitely oxygenated blood kahan par aayega? From the pulmonary vein to the left ऑरिकल. तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि राइट साइड से लेफ्ट साइड तक के जाने के सफर में ब्लड मस्ट पास थ्रू दी लंग्स. ठीक है, वाई लंग्स? बिकॉज इट नीड्स टू बी ऑक्सीजनेटेड बिफोर इट कैरिंग टू दी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी बॉडी. इज इट ओके? समझ आ रही है बात? तो इस क्वेश्चन के लिए यू शुड नो 2-3 पॉइंट्स दैट विच side of the heart carries oxygenated and which carries deoxygenated, which is pulmonary heart and which is systemic heart. ठीक है, तो ये this is again human physiology, circulatory system. Okay, this is interesting question. Animal kingdom, right? आपने क्लास 9th में डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़ा है. मैंने कई सारे वीडियोस भी बनाए हैं उस टॉपिक पे. इफ़ यू पीपल वांट टू गो थ्रू दैट टॉपिक, do watch that videos. ठीक है, उसमें we have a complete description of the animal kingdom, plant kingdom in a very brief and summarized manner, so that any question comes like this, you can answer this. है ना, बहुत ही थोड़ा सा मैंने उसमें पार्ट डाला है. एवरीथिंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर NTSC 1, 2 and KVPY एग्जाम. ठीक है, चलिए. yes, Cheshta says option is 1. Let's see whether it is 1 or not. Question says, in which one of the following the genus name, its 2 characters and its phylum are not correctly matched. है ना, not की बात कर रहे हैं, ये हमें ध्यान रखना है. It is talking about कि कौन सा मैच नहीं कर रहा है, whereas the remaining 3 are correct. है ना, तो first is given phyla, body segmented, mollusca, calcium carbonate. Cheshta, can you specify the reason why you said first? Okay, why it is first? What you said, beta? You said first in the chat box, so I wanted to know what is the reason, right? Sir, ma'am, reason B लगा मुझे. CaCO3 is secreted by mantle. No, it is not the B option actually. I mean, the reason is not this. Option is you are specifying it is correct. Actually, the correct option is 1. ठीक है, इसमें बोल रहे हैं कि बॉडी सेगमेंटेड मॉलस्का, कैल्शियम कार्बोनेट शेल इज सीक्रेटेड बाय मेंटल. तो एक्चुअली ये इनकरेक्ट मैच है. किस सेंस में इनकरेक्ट है? बिकॉज बॉडी इज नॉट सेगमेंटेड इन केस ऑफ मॉलस्कन्स, इट इज अनसेगमेंटेड बॉडी. ठीक है, ध्यान रखनी है हमें बात. बाकी तीनों ऑप्शंस देख लेते हैं. एस्टेरियास इज अ स्टारफिश, बिलोंग्स टू द फाइलम इकाइनोडर्म. बिल्कुल सही बात. स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं इनको. Commonly, they have the projection on their surface as spines. That is why they are commonly called as spiny skin organisms. Water vascular system. आपने बहुत commonly water tube feed system पढ़ा होगा, और उस tube feed system को हम vascular भी बोलते हैं. So that means it is perfectly all right. Option number 2. It is absolutely matched. All the 3, the 2 characters, the genus name and the phylum name. ठीक है. Option number 3, Sycon is actually pore bearing organism. है ना, पॉरीफेरेंस होते हैं. फर्स्ट फाइलम हमने जो डिस्कस किया था अपने प्रीवियस सेशंस में ड्यूरिंग द टॉपिक एनिमल किंगडम. तो पोर बियरिंग ऑर्गेनिजम्स है. वाटर कैनाल सिस्टम. कौन सा सिस्टम होता है? वाटर कैनाल सिस्टम. है ना, तो बिल्कुल वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट है. स्पेसिफिक फीचर है, इट कंप्राइजेज ऑफ मेनली 3 पार्ट्स. ऑस्टिया, है ना, स्पॉन्ज सील, राइट, ऑस्क्यूलम. तो स्पॉन्जी सील इज लाइंड विद द टाइप ऑफ सेल जिसको हम कॉनोसाइट्स बोलते हैं. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस एनिमल इज एबल टू परफॉर्म द डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस. तो बिल्कुल सही मैच. Sycon, pore bearing organism, belongs to the phylum Porifera and have water canal system. Periplaneta का it is the scientific name of the cockroach. हम सब जानते हैं, बहुत अच्छी से बात, सबने देखा है. तो Orthopoda is actually this Periplaneta is one of the insect. क्या है ये? Insecta है. And this is one of the class of the phylum Orthopoda. Yes, Orthopoda का specific feature is jointed appendages and chitinous exoskeleton. बिल्कुल ठीक बात. किताब की लाइंस हैं ये NCERT की, if you go through.
So these three are absolutely correct, but in option number 1 it is written body segmented. Option, I mean the character B is correct. Calcium carbonate shell is secreted by mantle. That is true. But then body is unsegmented in case of molluscans. ठीक है, तो ये हमारी बात यहाँ पे गलत हो गई, इसलिए सही ऑप्शन हमारा क्या बन गया? पाइला. पाइला इज वन ऑफ द मॉलस्कन एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड, राइट? तो आवर करेक्ट ऑप्शन इज option number 1 due to the first character which is written as body segmented but it is unsegmented body, right? तो बाकी 3 सही है, हमें ध्यान रखने हैं, स्पेसिफिक फीचर है फाइलम के ये, और आपको इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस इस टाइप से बन सकते हैं. तो वी नीड टू लर्न व्हाट आर द स्पेसिफिक फीचर्स प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिजम्स बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर फाइलम. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. 2 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स दैट आर जनरली इरिवर्सिबल. तो किसकी बात कर रहे हैं? इरिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की बात कर रहे हैं. कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कौन से होते हैं? एनी मेथड दैट अलाउज सेक्सुअल इंटरकोर्स बट प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी, है ना? तो उस टाइप के मेथड को, यस चेष्टा, यू आर राइट बेटा. तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, एनी मेथड दैट अलाउज सेक्सुअल इंटरकोर्स बट प्रिवेंट प्रेगनेंसी. ठीक है, तो विच इज नियरली इरिवर्सिबल एंड विच ब्लॉक्स द गैमेट फ्रॉम मूविंग टू अ साइट वेयर फर्टिलाइजेशन कैन अकर, है ना? तो साइट को ही ब्लॉक कर देते हैं जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, वहीं पर नहीं कंडक्शन हो पाता उनका. फर्स्ट इज मेल फीमेल कॉन्डम, सेकेंड इज मेल कॉन्डम एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स. बिल्कुल दोनों गलत ऑप्शन है बिकॉज दे एक्चुअली ओनली प्रिवेंट्स द मीटिंग ऑफ द स्पर्म एंड ओवम, है ना? In case of first option, it is completely barrier methods. So they just simply prevents the meeting of the sperm and ovum, but they are worldwidely used. Why they are worldwidely used? Because it has an advantage that the user is protected from the STDs. Previous session में I have brought a question for you that why barrier methods is worldwidely used. Why? एक तो पहली बात, it prevents the meeting of sperm and ovum, so it acts as a contraceptive method. ठीक है. Number 2, why it is widely used? Because it helps the user to prevent from STDs as well, sexually transmitted disease. So that is why these methods are worldwidely used. ठीक है. Second is the male condom and the oral contraceptive. तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि ओरल पिल्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें दे हैव द प्रोजेस्ट्रॉन पिल्स भी हो सकती हैं एंड प्रोजेस्ट्रॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन पिल्स भी हो सकती हैं. सो दे बेसिकली व्हाट दे डू इन द बॉडी, दे एक्चुअली इम्बैलेंसेस द प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन्स. सो हेंस दे कैन बी प्रूव्ड एज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. ठीक है. फोर्थ इज सेइंग कोइटस इंटरप्ट्स एंड रिदम मेथड. अब देखो कोइटस इंटरप्ट्स और रिदम मेथड जो है, दीज आर नेचुरल मेथड्स and actually these are nearly failure methods. Naturally methods हैं ये और failure methods हैं. They may prevent the fertilization or they may not prevent the fertilization depending on the conditions. तो इनको हम कंसिडर नहीं करेंगे. क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं नियरली इरिवर्सिबल. तो बेसिकली वैसेक्टोमी. वैसेक्टोमी इज व्हाट? There is a structure, there is a conducting tube which is present in the male reproductive tract, and that tube or conducting duct is called as vas deferens. ठीक है. तो vas deferens को हमने कट करके, कट लगाया उस पर और टाई कर दिया उसको. सो दैट इज कॉल्ड एज वेसेक्टोमी. तो बिकॉज वेसेक्टोमी, आई मीन vas deferens इज द कंडक्टिंग स्पर्म डक्ट है वो. व्हेन वी कट इट एंड लाइगेट इट, सो द स्पर्म कंडक्टिंग पाथ विल बी ब्लॉक्ड. इट विल नॉट बी एबल टू रीच टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. ठीक है. सेम गोज टू ट्यूबर लाइगेशन. There is a reproductive structure, secondary sex organs present in females, and these are fallopian tubes. ठीक है. और इन fallopian tubes को we also called as oviducts. तो ये जो है, this is basically the site of fertilization. तो अभी हमने क्या किया? ट्यूबल ligation का मतलब सेम, that is we generally call it as tubectomy also. तो tubectomy में same which haven't happened in the vasectomy, but the difference lies that here what we did, we cut and ligate the fallopian tubes, है ना? तो हमने again we have stopped the
साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन, है ना, तो वहाँ पर स्पर्म विल नॉट बी एबल टू रीच बिकॉज वी हैव कटेड एंड लाइगेटेड, सो दैट इज वाई दी स्पर्म विल नॉट एबल टू रीच टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. Hence these methods are nearly irreversible method because these are surgical methods. ठीक है, तो दे हमारा ऑप्शन क्या बनेगा? इट इज ऑप्शन नंबर 3, वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी. ठीक है, बाकी 3 आर सम आर बैरियर मेथड्स, सम आर स्टेरॉयडल मेथड्स, हार्मोनल मेथड्स और नेचुरली अकरिंग मेथड्स. तो दीज कैन बी रिवर्सिबल, बट देन अगर हम वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी की बात करें, दीज आर नियरली इरिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. ठीक है, तो हम ध्यान रखेंगे ये बात. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट. ओके, ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स थ्रू अ नर्व फाइबर, the potential on the inner side of the plasma membrane has which type of electric charge? अब देखो अगेन ह्यूमन फिजियोलॉजी, न्यूरल सिस्टम है ना, आपको बात कर रहे हैं कि जब नर्व इम्पल्स होता है तो आपकी इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, है ना, एक्सर्न के इधर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन. यस चेष्टा, अगेन यू आर राइट बेटा. तो कौन सा चार्ज होता है, फिर कौन सा हो जाता है, फिर कौन सा हो जाता है. इट्स अ कंप्लीट द स्टोरी ऑफ द नर्व इम्पल्स, है ना. तो अगर हम रेस्टिंग पोटेंशियल की बात करें, जब कोई भी तरीके का स्टिमुलस नहीं मिला हुआ है मेम्ब्रेन को, एट दैट पॉइंट रेस्टिंग पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव, है ना. इसका भी रीजन है व्हाई इट इज नेगेटिव. एट द मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सर्न, यू नो, देयर इज अ पंप विच इज बीन एग्जिस्ट एंड दैट पंप इज कॉल्ड, सपोज दिस इज द मेम्ब्रेन, तो एक पंप एग्जिस्ट करता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड एज सोडियम पोटेशियम पंप, है ना. सोडियम पोटेशियम पंप एग्जिस्ट करता है. सो व्हेन देयर आर 3 मॉलिक्यूल्स, 3 आयंस ऑफ द सोडियम आयंस गोज आउट, है ना. सपोज दिस इज आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन and this is inside of the membrane. So when 3 sodium ions goes out, 2 potassium ions comes in. ठीक है, तो अगर अब देखो ना, पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल बाहर ज़्यादा जा रहे हैं, अंदर कम आ रहे हैं, तो एक तो ये रीज़न हो गया वाई इनर इज नेगेटिव. ठीक है, बेसिकली हमारा सही ऑप्शन क्या है? इट इज़ ऑप्शन नंबर 4, फर्स्ट नेगेटिव. तो रेस्टिंग पोटेंशियल इज नेगेटिव जब किसी तरह का कोई स्टिमुलस नहीं मिला हुआ है ना, इम्पल्स के लिए, तब रेस्टिंग मेम्ब्रेन क्या रहेगा हमारा? नेगेटिव रहेगा. नंबर 1, इट इज सोडियम पोटेशियम पंप. नंबर 2, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इनसाइड इज मोर. तो अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल अंदर ज्यादा है, डेफिनेटली द चार्ज विल बी नेगेटिव इनसाइड. ठीक है, तो रेस्टिंग पोटेंशियल इज फर्स्ट नेगेटिव. एज सून एज द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ द स्टिमुलस इज गिवन टू द मेम्ब्रेन, इमीडिएटली द पोलैरिटी रिवर्स, है ना. पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी. पहले तो क्या था हमारा, यहाँ बात कर लेते हैं, इनर वाज पॉजिटिव, सॉरी इनर इज नेगेटिव एंड द आउटसाइड इज पॉजिटिव, है ना. एज सून एज द स्टिमुलस गिवन टू द मेम्ब्रेन, जस्ट द पोलैरिटी इज रिवर्स. अभी क्या हो जाएगा? इट इज नेगेटिव आउटसाइड एंड पॉजिटिव इनसाइड. ठीक है, एंड व्हेन दिस stimulus is over, again membrane get its original position at resting stage and the same polarity what it was earlier it attains again, है ना. बाहर इज पॉजिटिव एंड द इनर इज नेगेटिव. तो ऑप्शन नंबर 4 सेज फर्स्ट नेगेटिव देन पॉजिटिव अगेन बैक टू नेगेटिव. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 4. ध्यान रखनी है हमें बात, रेस्टिंग पोटेंशियल जो होता है मेम्ब्रेन का, एक्सर्न मेम्ब्रेन का, इट इज ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज ऑफ द 2 रीजंस. नंबर 1, सोडियम पोटेशियम पंप. नंबर 2, द इनर साइड हैज मोर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल. ठीक है, ध्यान रखेंगे हम. इसके बेस पे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. Which one of the following sets of animals is produce the same substances as the excretory product? है ना, तो आपको सॉरी आपको बताना है कि ऑप्शन में कौन सा सेट ऑफ एनिमल प्रोड्यूसेस द सेम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. अब देखो, वी नो दैट वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स. नाइट्रोजनस वेस्ट की बात अगर करें तो इट इज अमोनिया, it is urea and it is uric acid. You know, on the basis of this excretory product, what kind of the excretory product the animal has, we have different types of organisms also. Like if the organism is excreting ammonia, what we'll call it as? We'll call it as the ammonotelic organism. Yes चेष्टा, you're right बेटा, ammonotelic organisms हो जाएंगे. ठीक है, और अगर यूरिया एक्सक्रीट कर रहे हैं तो
यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे अगर यूरिक एसिड एक्सक्रीट कर रहे हैं, सो दे विल कॉल इट एज यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। तो आपको बताना है कि the group of the organisms which produces the same substance as their excretory product. ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट बिकॉज यू नो पिजन इज व्हाट, पिजन इज यूरिकोटेलिक, है ना, बर्ड है, एव्स है, एंड देन फ्रॉग इज यूरियोटेलिक, तो ये तो सेम सब्सटेंस नहीं किया। कैमल इज मैमल, है ना, स्नेक इज अ रेप्टाइल, अगेन नहीं करेंगे, ये भी गलत ऑप्शन हो गया, ये भी गलत ऑप्शन हो गया। दो फ्रॉग इज एन एम्फीबियन बट इट इज एन यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म, है ना। सेम गोज विथ मंकी एंड डॉग, मंकी एंड डॉग आर दी मैमल्स बट दे ऑल थ्री प्रोड्यूसेस यूरिया एंड दे आर कॉल्ड एज यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, लास्ट की बात कर लेते हैं। अमीबा यूनिसेलुलर है, आंट इज एन इंसेक्ट, नहीं बिल्कुल गलत बात है, तो एक से इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं होता, right? But then option number 3 has 3 organisms: frog, monkey and dog. Frog is an amphibian, it is uriotelic. Monkey and dog are mammals. Mammals तो होते ही uriotelic organisms है, so that is why sorry, option number 3 will be our correct option. ठीक है, option number 3 will be our correct option, that all the organisms excrete urea as their excretory product. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन सेज। यस, ह्यूमन फिजियोलॉजी, एनिमल न्यूट्रिशन। द डायग्राम बिलो शोज अ सेक्शन थ्रू अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स 1, 2 एंड 3? है ना, किसका डायग्राम है? चेष्टा, कैन यू टेल अस, बता सकती है? विच डायग्राम इज दिस? कौन सा पार्ट की हम बात कर रहे हैं? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द विलाई. Finger-like projections present on the surface of the small intestine, right? Small intestine में present होता है, क्यों present होता है? Because we know that small intestine is the chief site of absorption. Absorption का chief site है, and these are finger-like projections, and these increases the surface area many more times than actually it is present in the small intestine. ठीक है, नो बेटा, दिस टाइम यू आर इनकरेक्ट। तो इट्स आस्किंग कि व्हाट मैचेस विद 1, 2 एंड 3. सो दीज आर villi present in small intestine, increases the surface area for absorption, and small intestine is the chief site for the absorption of the nutrients. ठीक है, तो फर्स्ट इज, देखो हमें पता ही चल रहा है ऐसे, फर्स्ट इज क्या है? फर्स्ट इज एपिथेलियम. इनर टू इट दीज, ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, बिल्कुल ये एक बहुत ही स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जो कि विलाई में प्रेजेंट होते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट्स. फैट्स ऐसे जनरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते. इन प्रीवियस सेशंस देयर वाज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस लैक्टियल्स, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट्स एंड लिपिड्स. सो बेसिकली द फैट्स is actually going to absorb with this structure, and that is called as lacteals. ठीक है, then these are, which is spread throughout, these are capillaries. तो अभी बताओ क्या बनेगा ऑप्शन? फर्स्ट इज एपिथेलियम, सेकंड इज कैपिलरीज एंड थर्ड आर लैक्टियल्स. सो बट नेचुरल है, आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 1. ठीक है, तो ये विलाई का स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना है हमें. विलाई के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, लिम्फेटिक स्ट्रक्चर है, विच इज कॉल्ड एज लैक्टियल्स, विच हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट्स. चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है. यस, डिजीजेस सिट क्वेश्चन है ये, है ना. व्हाई डू वी फॉल इल, आपने पढ़ा होगा उसमें. स्वाइन फ्लू इज अ डैश डिजीज कॉज्ड बाय डैश एंड कैन बी प्रिवेंटेड बाय डैश. बिल्कुल ठीक, राइट, बिल्कुल ठीक चेष्टा, बिल्कुल सही तुमने आंसर दिया. रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, H1N1 वायरस, viral disease है, this is responsible for the cause of this disease, and an anti-drug given during swine flu is Tamiflu. ठीक है, तो ये कुछ जो चीज़ें हैं हमें ध्यान रखनी है.
ठीक है, दिस इज वन ऑफ द डिजीज विच हैज़ अ क्वेश्चन, बट देन मेनी अ डिजीजेज आर देयर ऑन विच द क्वेश्चंस कैन बी फॉर्म्ड. So we have to summarize that. We should know about the very common bacterial diseases, viral diseases, protozoal diseases, fungi diseases. This type of question can be framed on any type of diseases with reference to any type of causative agent. So this is one type. आपको पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन बन सकता है. डिपेंडिंगली आपको बाकी और भी जो अदर बहुत कॉमन डिजीजेज हैं, दैट यू शुड नो अबाउट इट, सो दैट यू कैन गो टू दी राइट ऑप्शन. ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. लेट्स सी व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Read the two statements A and B. The number of mitochondria in a cell do not correspond to the function of the cell. है ना, ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है सेल में तो इट इज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू द फंक्शन ऑफ द सेल. स्टेटमेंट बी सेइंग माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉमन टू बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो आपको बताना है कि सही ऑप्शन क्या है. अब देखो, अगर ए ऑप्शन की बात करें यहाँ पर, it is saying number of mitochondria in a cell do not correspond to the function of the cell. This is absolutely incorrect statement. है ना, बिल्कुल. it depends, the number of mitochondria depends on the type of the cell where it is present, because if it is highly metabolic activity cell, भाई माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, बैटरी ऑफ द सेल है, पावर हाउस ऑफ द सेल है, एटीपी बनाता है, एनर्जी करेंसी बना रहा है, तो डेफिनेटली ये कहाँ पर ज़्यादा प्रेजेंट होगा, जहाँ पर मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा. है ना, तो ये अगर हम बात करें कि इट इज़ नॉट कॉरस्पॉन्ड टू द फंक्शन ऑफ सेल, इट इज़ वेरी मच इनकरेक्ट. Mitochondria is actually, number of mitochondria depends on the function of the cell. If it is metabolically active, highly active cell, so definitely number of mitochondria will be much in larger number as compared to the cell which is inactive or metabolically inactive. तो हमारा A option is absolutely wrong. ठीक है. दूसरा क्या बोल रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कॉमन टू बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल. बिल्कुल ठीक बात, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है. सो इफ ए इज इनकरेक्ट एंड बी इज करेक्ट, विल गो विद विच ऑप्शन? डेफिनेटली विल गो विद ऑप्शन नंबर बी. स्टेटमेंट बी इज करेक्ट एंड ए इज रॉन्ग. ठीक है, सेल टॉपिक से क्वेश्चन है. चलिए आगे बढ़ लेते हैं. जीन्स आर मेड अप ऑफ, वेरी सिंपल. जीन्स जो होते हैं आपकी हेरिडिटरी यूनिट्स हैं, है ना, आपके क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होती हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग्स. वी ऑल नो दैट. बहुत छोटी क्लासेस से सेल टॉपिक में हम इसकी सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना. तो किस चीज़ के बने, आपको जीन्स का कॉम्पोजिशन पूछा है. नो चेष्टा, दिस टाइम यू आर रॉन्ग बेटा. इट इज़ नॉट लिपोप्रोटीन. उसका कॉम्पोजिशन क्या है जीन्स का? दीज आर कंसिस्ट ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, है ना. न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है? व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड्स? तो न्यूक्लियोटाइड्स बेसिकली हैज 3 पार्ट्स. क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट है न्यूक्लियोटाइड्स में? दैट इज शुगर, पेंटोज शुगर प्रेजेंट है, राइट, एंड देन नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है, एंड देन फॉस्फेट ग्रुप. ठीक है, these are the composition of the nucleotides, and when many such nucleotides group together they form the genes, hence it is the composition of the genes are polynucleotides. ठीक है, तो हम ध्यान रखेंगे ये बात, it is polynucleotide. Next, moving on to next question. The process of transcription is involved in the, अब देखो ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, आपकी क्लास 10th का नहीं है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा हायर लेवल है, लेकिन बेसिक्स आपने ज़रूर पढ़े होंगे क्लास 10th में. एक्चुअली देयर इज़ अ प्रोसेस गिवन बाय अ पर्सन एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोगमा. तो ये एक प्रोसेस है जिसके अंडर व्हाट वी से, व्हेन देयर इज डीएनए, डीएनए फॉर्म्स आरएनए एंड आरएनए फॉर्म्स प्रोटीन. इतना तो हम जानते हैं, है ना. तो when DNA forms RNA or when RNA formed from DNA, what is the process called as? It is called as transcription. मतलब एक transcript बन जाता है so that our cell can read it and form the protein. है ना, DNA पे जो information होती है that has been transferred in the form of RNA. ठीक है, आरएनए उस इंफॉर्मेशन को कैरी करता है एंड देन आरएनए ब्रिंग इट टू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, बिकॉज वी नो दैट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेल एंड डीएनए इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, है ना. तो व्हेन दिस ट्रांसक्रिप्शन इज गोइंग वेयर, ट्रांसक्रिप्शन इज टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, है ना. तो दिस
the information present on the DNA is converted and the RNA is formed. And then this RNA jumps from the nucleus to the cytoplasm of the cell, and this RNA brings the information from the DNA from the nucleus to the cytoplasm and form proteins. So basically RNA क्या करता है, उस transcribed information को translate कर देता है in the form of protein. So this complete phenomena is called as central dogma. यहाँ पे एक चीज़ और हम डिस्कस करेंगे, ये प्रोसेस तब चलेगा when DNA is a genetic material, and we know that most of the organism has DNA as a genetic material, but there are some organisms, which lower organisms rather, in which RNA also acts with DNA, I mean genetic material. उस condition में क्या होगा, अगर RNA genetic material है तो पहले RNA will form DNA, then this DNA will form mRNA, and then RNA will translate this information to form the proteins. ठीक है, तो ये कहानी कब चलेगी? This is when RNA is acting as genetic material, and this generally happens in lower organisms. ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? अब देखो ना, ट्रांसक्रिप्शन किस प्रोसेस को बोल रहे हैं? जब RNA DNA से बन रहा है. अब हम क्या बोल रहे हैं? DNA को बना रहे हैं RNA से, तो इसको हम क्या बोल देंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. दिस प्रोसेस इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. ये बात ध्यान रखनी है हमें. तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज इन्वॉल्व इन द. अब खुद ही आंसर बताओ, क्या होगा चेष्टा? कैन यू टेल अस नाउ व्हाट विल बी द ऑप्शन? आफ्टर लर्निंग दिस सेंट्रल डोगमा in which the RNA is formed from DNA, and then RNA translates its information into to form the proteins. Simple? Yes, it is the conversion of DNA into RNA. ठीक है, तो प्लीज नोट इट डाउन इन योर नोटबुक. दिस इज इंपॉर्टेंट. आपसे अभी ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पूछा है. नेक्स्ट क्वेश्चन में मे बी दे कैन आस्क यू अबाउट द ट्रांसलेशन, है ना. तो RNA एक्चुअली, whatever the information is carried by the RNA translates that information to form the proteins into the cytoplasm of the cell with the help of the ribosomes, because we know that ribosomes are the proteins factory and forms the proteins. ठीक बात है. चलिए आगे देख लेते हैं. What next is? Which vitamin deficiency causes the loosening and the falling of teeth? Very simple. अगर थोड़ा सा भी जानते हो, vitamin C is responsible for this. कुछ इसमें explanation की जरूरत नहीं है. Vitamin A, yes. B is the option and vitamin C is the answer. ठीक है, बहुत simple सा question है. Okay, enzyme renin is secreted in. अब देखो human physiology, एनिमल न्यूट्रिशन और रेनिन के बारे में कई बार मैं कहानी बता चुकी हूँ पहले प्रीवियस सेशंस में, अगर आपने ध्यान से देखे हैं. यस चेष्टा, नो चेष्टा, इज दिस टाइम यू आर ऑल्सो इनकरेक्ट. यू नो, मैंने आपको बताया था ये बात प्रीवियस सेशंस about this. What is renin? You know, renin is an enzyme which is produced in the gastric juice. आपके स्टमक में सीक्रेट होता है, right? And this basically digest milk protein. renin किसको डाइजेस्ट करता है? मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, राइट? तो आपको कंफ्यूज करने के लिए जो बात दी गई थी चेष्टा, आप उससे कंफ्यूज हो गई. ठीक है, व्हाट इज रिटन हियर? इट इज रिटन एज ह्यूमन एडल्ट्स. एडल्ट्स में थोड़ी ना सीक्रेट होता है रेनिन, है ना. विद द एडवांसमेंट ऑफ एज द सीक्रेशन ऑफ द रेनिन गोज ऑन डिक्रीजिंग. So basically मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है रेनिन, एंड इट इज जनरली प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस ऑफ द इन्फेंट्स. ठीक है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, जनरली दे हैड मिल्क ओनली, है ना, दूध ही पीते हैं. वी नो दैट दे आर डिपेंडेंट ऑन मिल्क. दैट इज व्हाई वी से मिल्क इज अ कंप्लीट फूड. इट हैज ऑल द कार्ब्स एंड प्रोटीन्स एंड फैट्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी, है ना. एंड दिस एंजाइम इज बेसिकली प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस ऑफ द infants, right, secreted by your gastric glands, right? So यहाँ पे हमें confusion की ज़रूरत नहीं है. It is given as human adults. It is not present in the stomach of the human adults. It is absent there. Stomach of calf, stomach of apes. It is all, none of these will be the option, है ना. तो हमारा human infants में secrete होता है renin enzyme by your gastric glands, and that digests the milk protein, and that is season.
ठीक है, दो इसका भी इनिशिएट फाइनल डाइजेशन प्रोटीन से ही होगा, आई मीन पेप्सिन से ही होगा. पेप्सिन इज अ मेजर सोर्स, आई मीन मेजर एंजाइम विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन्स, एंड वी नो दैट स्टमक इज द चीफ साइट ऑफ द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, है ना. हमारे प्रोटीन्स जो होते हैं हमारे स्टमक में ही डाइजेस्ट होते हैं मेजरली. एंड दो हम मिल्क प्रोटीन का अगर इनिशिएशन पूछें तो डाइजेशन किससे होगा, रेनिन से होगा, बट देन फाइनल डाइजेशन विल बी टेक्स प्लेस ओनली बाय पेप्सिन इवन ऑफ मिल्क प्रोटीन. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. व्हाट नेक्स्ट इज द फंगस Saccharomyces is also known as. Saccharomyces जो है that is also known as, you know, it is yeast, है ना. इसको ईस्ट बोलते हैं. येस चेष्टा, यू राइट. बडिंग ईस्ट इज ऑल्सो नोन एज Saccharomyces. साइंटिफिक नेम है, ध्यान रखना है. यस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बायोमैग्निफाइड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ फूड चेन, है ना. बायोमैग्निफिकेशन, अगेन ये क्वेश्चन बायोमैग्निफिकेशन का इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, बस आपको ध्यान रखना है what is biomagnification. You know, when we go from the first to the next and then to the next trophic level, or as we go up to the trophic levels, accumulation of the chemicals takes place. You're saying first and second. Yes beta, this is first and second. So accumulation of the chemicals takes place at different levels and it goes on increasing when we go to the top of the levels. तो उस process को हम biomagnification बोलते हैं, है ना. तो अब जब हम ऊपर चलते जाएंगे तो सबसे ज़्यादा बायोमैग्निफिकेशन कहाँ पे होगा, इट इज़ ऑन द टॉप लेवल. एक्यूमुलेशन केमिकल सब्सटेंसेस का सबसे ज़्यादा टॉप लेवल पे होगा. सो दैट प्रोसेस इज बायोमैग्निफिकेशन. आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर बायोमैग्निफाइड, कौन सा बेसिकली होता है. देखो, ग्रीन हाउस गैसेस तो नहीं लेंगे हम, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस तो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोमैग्निफिकेशन. सेम गोज विद एरोसॉल्स, है ना. एरोसॉल्स नेचुरली भी हो सकते हैं, एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकते हैं. मतलब जो हमारे एटमॉस्फेयर में सारे लिक्विड ड्रॉपलेट्स जो है, दैट इज बेसिकली एरोसॉल्स दैट एक्चुअली पोल्यूट्स आवर एयर, है ना. तो वो नेचुरल भी हो सकते हैं, स्मोक एंड ऑल दैट. एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकते हैं. तो मतलब विद द ह्यूमन हम लोग भी पोल्यूशन को बहुत गंदा करते हैं, वी नो दैट बहुत अच्छे से. सो दैट इज बेसिकली एरोसॉल्स विच इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, है ना, इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड ड्रॉपलेट्स और मैटर. तो ये दोनों चीजें एक्यूमुलेट नहीं होती ट्रॉपिक लेवल्स पे. होता क्या है, इट इज द हेवी मेटल्स एंड DDT विच इज बीन स्प्रेड बाय द फार्मर्स, है ना. तो ये दोनों चीजें आपकी एक्यूमुलेट होती हैं, बायोमैग्निफाइड होती है. तो हमारा सही ऑप्शन क्या बनेगा विद रिस्पेक्ट टू दीज टू, फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर A. ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट वी नो व्हाट आर द सब्सटेंसेस दैट इज बायोमैग्निफाइड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द ट्रॉपिक लेवल एज वी गो अप इन द लेवल्स. ठीक है, चलिए. द मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस अकर इन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ह्यूमन फिजियोलॉजी, एक्सक्रीटरी सिस्टम, राइट. तो आपसे पूछा है कि मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन सब्सटेंसेस का कहाँ पे होता है. अब देखो, अगर रीएब्जॉर्प्शन की ही बात करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी में देयर इज एन ऑर्गन्स कॉल्ड एज किडनीज, है ना. तो किडनीज में हमारा जो मेजर सब्सटेंस है रीएब्जॉर्ब्ड होता है. वाई? बिकॉज देयर इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट प्रेजेंट विच इज कॉल्ड एज निफ्रॉन्स. तो निफ्रॉन्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, अ कप शेप्ड capsule which is called as Bowman's capsule, then the different tubules present, highly convoluted tubules present. ये तो मैं बहुत सिंपल सा बनाया अभी मैंने, but this is not as simple as it is looking. बहुत ही highly complicated and convoluted structure है. So this is the tubule of, I mean this is a nephron of your kidney present. ठीक है, तो अब ये जो है this is the cup shaped structure जिसको हम Bowman's capsule बोलते हैं. And inside it is present is the tuft of capillaries present है ना, that is called as glomerulus. इसकी बात नहीं करेंगे हम, बिकॉज यहाँ पे अभी रीएब्जॉर्प्शन की कहानी पूछी है. द प्रॉक्सिमल, PCT stands for what? PC stands for proximal convoluted tubule. ठीक है, why it is we are called as proximal convoluted का मतलब होता है highly folded. Though I didn't draw it like that, but then it is highly folded.
ठीक है, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है विच इज नियरर, पास में जो चीज होती है। तो ये टिब्यूल जो है आपके बोमन्स कैप्सूल के पास है, इसलिए हमने इसको बोल दिया प्रॉक्सिमल। डिस्टल, डीसीटी का मतलब जो चीज थोड़ी दूर भाग गई, दूर चली गई, तो ये वाला हम बोल लेते हैं डीसीटी। दिस इज ऑल्सो हाईली कॉन्व्यूलेटेड, नेम इज डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल, अगेन हाईली फोल्डेड, बट मैंने बहुत सिंपल सा बनाया है टू मेक यू अंडरस्टैंड, है ना। देन दिस इज आवर कलेक्टिंग डक्ट और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। मेनी ऑफ द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द कलेक्टिंग डक्ट सो दैट दे कैन कैरी द यूरिन टूवर्ड्स द रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस की बात नहीं करेंगे, रीअब्जॉर्प्शन हमारी होती है इन डिफरेंट ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनी एंड आई मीन ऑफ द नेफ्रॉन, एंड दिस इज द यू शेप्ड स्ट्रक्चर। यू शेप्ड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हेनलेज लूप, ठीक है। दिस इज हेनलेज लूप और लूप ऑफ हेनले, कुछ भी बोल सकते हो। So these are the different tubules of the kidney which helps in the reabsorption of the various substances which is being filtered out through the Bowman's capsule. भाई कैपिलरीज में आपके यहाँ पे ब्लड आ रहा है तो इट इज बीन फिल्टर्ड, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि यूजफुल चीज़ें भी फिल्टर्ड हो जाती हैं, है ना। तो फर्स्ट इज एक्चुअली अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज दी स्टेप, दीज आर द स्टेप्स विच इज एक्चुअली द स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ड्यूरिंग द यूरिन फॉर्मेशन द फर्स्ट स्टेप विल बी द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, देन द रीअब्जॉर्प्शन एंड रीसिक्रीशन। एब्जॉर्प्शन रीसिक्रीशन की बात करें तो साथ साथ चलता है, विल नॉट गो इनटू दैट अभी इन डिटेल। उसके लिए आप और जो वीडियोस हमने बनाए हैं फॉर डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, यू कैन गो थ्रू देयर। बट देन एज इफ नाउ हियर इट इज आस्किंग दैट मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पर प्रेजेंट होता है ना, ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो हम ध्यान रखेंगे मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस एट प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। मतलब मान के चलो कि 70 to 80% of the substances which is useful and filtered out through the Bowman's capsule यहीं पे हो जाता है। अगर यहाँ पे नहीं हो रहा है that means आपका नेफ्रॉन में कोई दिक्कत है, आप you need to go to the doctor। समझ आ रही है बात, कुछ ना कुछ लोचा है इसमें, अगर that means if there is some problem in your PCT, otherwise the maximum substances of reabsorption takes place at PCT near about 70 to 80%। होता क्यों है, देखो मैं एक बिल्कुल स्ट्रेट सा बनाया मैंने to make you understand। यहाँ पर ना क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, ठीक है, और उस क्यूबॉइडल एपिथेलियम में भी माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, तो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पर, है ना। इसलिए आप देखो ना इसके सरफेस पे कुछ ब्रिसल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको माइक्रोविलाई बोल रहे हैं। तो ये हमें किसका अपीयरेंस देता है, ऐसे कि ब्रश बॉर्डर टाइप का, कि कुछ बॉर्डर है जिसपे ब्रिसल्स निकले हुए हैं। सो हेंस दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। इस वाली एपिथेलियम को हम क्या बोलते हैं, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, बिकॉज द अपीयरेंस इज ब्रश लाइक। Why? Because it is cuboidal and has microvilli and that increases the surface area 100 times। मतलब बहुत ज़्यादा surface area बढ़ा देता है absorption के लिए। That is why maximum substances of all the useful substances which has been filtered out through the Bowman's capsule, यहीं पर ही उसका reabsorption हो जाएगा। It is nearly about 70 to 80%, ये मान के चलना, ठीक है। एक बात और भी ध्यान रखना, यहाँ पे आपका सारा ग्लूकोज शुड बी कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड, एंटायर ग्लूकोज। अगर नहीं एब्जॉर्ब हो रहा दैट मीन्स कुछ बहुत मेजर प्रॉब्लम है, बाद में कहीं एब्जॉर्ब नहीं होता ग्लूकोज। अगर आप सोचें लूप ऑफ हेनले या डीसीटी या कलेक्टिंग डक्ट में हो जाए ग्लूकोज एब्जॉर्ब, तो नहीं होगा, यू विल हैव अ प्रॉब्लम इन देन। अगर आपका ग्लूकोज एब्जॉर्ब यहाँ नहीं हो रहा, कहीं नहीं होगा, इट विल स्टार्ट अपीयरिंग इन योर यूरिन एंड देन यू विल हैव अ डिसऑर्डर, है ना, जिसको हम डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं, है ना। पहले ग्लूकोसोरिया बोलेंगे, ग्लूकोसोरिया मीन्स कि वो आपका द ग्लूकोज इज अपीयरिंग इन योर यूरिन एंड इफ इट इज कॉन्स्टेंटली हैपनिंग दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम इन आवर नेफ्रॉन एंड कैन लीड अ डिजीज डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि मैक्सिमम सब्सटेंसेस आर रीएब्जॉर्ब्ड एट पीसीटी लेवल, अदरवाइज देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर नेफ्रॉन्स, ठीक। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी, बाकी तीनों विल बी दी रॉन्ग आंसर। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। व्हाट सेज नेक्स्ट, प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल इन हैविंग, वेरी सिंपल, कैन नॉट बी मोर देन सिंपल, है ना। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, बिग साइज न्यूक्लियस, सेल वॉल अराउंड द सेल मेम्ब्रेन, ऑल ऑफ देम। तो बेसिकली किसकी बात करेंगे हम, क्या डिफरेंस हो सकता है हमारा, बताओ चेष्टा, व्हाट कुड यू देम, व्हाट कुड बी यू फाइंड, yes, no idea, all of them, है ना। तो हम अब क्या बात करेंगे, इट विल बी
ऑल ऑफ देम। सारा डिफरेंस है ये। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होती है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, बिग साइज न्यूक्लियस होता है एज कंपेयर टू दी एनिमल रिलेटिवली। तो विल से इट इज ऑल ऑफ देम। Okay, a number of RBC, a human RBC is placed in a solution for few hours, but no change is observed in the size of the RBCs afterwards. है ना, हमने RBC रखे एक solution में, लेकिन कुछ change नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? है ना, what is the nature of the solution? बिल्कुल सही, absolutely correct बच्चे। अब देखो ना, ये क्लास 9th का क्वेश्चन है। आपके different types of solution is given in your topic, I guess it was topic cell. सेल में आपने पढ़ा होगा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, पैसिव प्रोसेस में आपके ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, दैट इज हाइपरटोनिक, हाइपोटेनिक एंड आइसोटोनिक। है ना, आइसोटोनिक का मतलब होता है सेम कॉन्सेंट्रेशन। क्या मतलब होता है? सेम कॉन्सेंट्रेशन इन एंड आउटसाइड द सेल, कोई चेंज नहीं है। जितना पानी बाहर है उतना पानी अंदर है, जितना सॉल्यूट्स बाहर है उतने सॉल्यूट्स अंदर हैं। तो अगर बिल्कुल सेम कॉन्सेंट्रेशन है, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस टेक्स प्लेस। ठीक है। हाइपरटोनिक, अब क्योंकि हम एक किसकी बात कर रहे हैं? सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो हम क्या लेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है, मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का ज़्यादा है। तो कॉन्सेंट्रेशन अगर सॉल्यूशन का ज़्यादा है तो आपके सॉल्यूशन में सॉल्यूट्स ज़्यादा है ना। तो सॉल्यूट्स अगर ज़्यादा है तो पानी क्या हो गया? कम हो गया। तो उस कंडीशन में क्या हो गया? आपकी सेल के अंदर पानी ज़्यादा हो गया, है ना। तो पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा? ऑस्मोसिस इज ऑलवेज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द हायर वाटर पोटेंशियल टू द लोअर वाटर पोटेंशियल, बिकॉज इनसाइड इज द लोअर वाटर पोटेंशियल, सॉरी इनसाइड विल बी द हायर वाटर पोटेंशियल। क्योंकि हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो पानी विल मूव फ्रॉम द आउटसाइड टू द इनसाइड। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? दैट कंडीशन में क्या हो जाएगा? आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में पानी बाहर आ जाएगा सेल के, और सेल अगर प्लांट सेल है तो देयर इज अ प्रोसेस, आपकी किताब में गिवन है, प्लाज्मोलाइसिस। सुना है आपने चेष्टा बच्चे? When a plant cell is placed in a hypertonic solution, whatever moves out from the cell and a condition called plasmolysis takes place and the cell will be plasmolysed. हाइपोटोनिक सोल्यूशन मतलब पानी बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है, तो वाटर विल मूव फ्रॉम द आउटसाइड टू द इनसाइड एंड द सेल्स विल स्वेल्स अप। ठीक है। इन केस ऑफ animal cell, even it can be burst out because there is no cell wall, rigid cell wall present on the outward. ठीक है। तो लेकिन हम क्या कह रहे हैं? यहाँ पे तो आरबीसीज रखा है हमने सोल्यूशन में, कोई चेंज ही नहीं हुआ। क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बराबर थी, बाहर भी और अंदर भी। तो कौन सा आंसर, क्या आंसर हुआ आपका? आइसोटोनिक। कोई चेंज नहीं हो रहा, दैट मीन्स आइसोटोनिक की बात कर रहे हैं हम। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सेल एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इज सेम, हेंस देयर इज नो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, सो देयर इज नो चेंज टू द आरबीसीज। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ओके, अगेन ह्यूमन फिजियोलॉजी, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जाइमोजेनिक सेल्स, पहले इसको मैच कर लेते हैं, हमको इसको अपने आप मिल जाएगा ऑप्शन हमारा। जाइमोजेनिक सेल्स, मैंने पहले भी प्रीवियस सेशंस में आई टोल्ड यू जाइमोजेनिक सेल्स, लेट्स सी वेदर इट इज ए और नॉट चेष्टा। तो जाइमोजेनिक सेल्स कौन से होते हैं हमारे? पेप्सिन। एक्चुअली पेप्सिन इज नॉट अ जाइमोजेनिक सेल, बट इट सीक्रीट्स इन द फॉर्म ऑफ zymogenic and that is pepsinogen. Zymogenic cells are inactive cells, है ना। इनएक्टिव सेल है पेप्सिनोजिन। अभी ये पेप्सिन को प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करेगा, बट इन प्रेजेंस ऑफ HCl क्या करेगा? इसको कन्वर्ट कर देगा इसके एक्टिव फॉर्म में, दैट इज पेप्सिन। तो ए मैच विथ 5। तो अभी तो हमारा कोई भी ऑप्शन बन सकता है क्योंकि चारों ऑप्शन में ए इज 5। प्रोड्यूस इन लिवर फॉर फैट डाइजेशन, है ना। तो फैट डाइजेशन में वी नो बाइल हेल्प करता है, और हमें पता है कि लिवर, बाइल कहाँ प्रोड्यूस होता है? लिवर में प्रोड्यूस होता है। लेकिन मैं बार बार ये बात बोलती हूँ, कई बार पहले भी बोल चुकी हूँ, बाइल प्रोड्यूस जरूर लिवर में होता है, बट स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। ठीक है। तो दिस इज बी इज सेइंग 2, सॉरी हाँ, बी सेइंग 1। तो देखो हमें यहीं पे मिल गया ऑप्शन, आगे जाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी क्रॉस चेक कर लेंगे कि बाकी सब हम सही किया है क्या नहीं किया हमने, है ना। तो यहीं पे आपको ऑप्शन मिल गया, बी इज 1, बाकी बी इज 2, 3, 6 गिवन, सो ऑल आर इनकरेक्ट। गैशियस डिफ्यूजन, गैशियस डिफ्यूजन इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्यों? बिकॉज एक्चुअली कहाँ पे होता है गैशियस डिफ्यूजन? एट द लेवल ऑफ alveoli प्रेजेंट इन द लंग्स, फ्रॉम द एनवायरमेंट इनटू द लंग्स, फ्रॉम द लंग्स इनटू द एनवायरमेंट। तो डिफ्यूजन इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो सी देख लेते हैं, सी इज 2, बिल्कुल ठीक बात।
देन गैशियस एक्सचेंज, गैशियस एक्सचेंज कहाँ होगा? inside the body, that means at your tissue, between the tissue and the blood. ठीक है, तो it is internal respiration between the alveoli and the blood in the lungs. ठीक है, तो this is internal respiration. So D is 3. Pulmonary vein, pulmonary vein always carries what? Oxygenated blood between the heart and the lungs. So E is 4. बिल्कुल ठीक बात. Pulmonary arteries always carries deoxygenated blood. Exceptional artery है, arteries always carries oxygenated blood, but the exception is pulmonary artery. अभी हमने इसी सेशन में previous question में देखा था that pulmonary arteries carries deoxygenated blood from the right ventricles towards the lung for the oxygenation. Then pulmonary vein carries the oxygenated blood towards the heart into the left auricle, which is actually having the oxygenated blood. ठीक है. रीनल आर्टरी, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ठीक बात है, फिल्ट्रेशन में हेल्प करेगा ये, है ना. सो बिल्कुल सही बात. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. अगर आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपने एनिमल न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन सारे पढ़े होंगे ना, तभी इस क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे. देखो हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट. अगेन प्लीज डू गो फॉर दैट टॉपिक, लाइफ प्रोसेसेस. ओके, देखो अभी हम डायबिटीज मेलाइटिस की बात कर रहे थे, अभी क्वेश्चन आ गया डायबिटीज इंसिपिडिस, विच इज अ डिफरेंट डिसऑर्डर, राइट. डायबिटीज इंसिपिडिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सेसिव यूरिनेशन एंड टू मच थर्ड्स ऑफ वाटर. दिस इज 2 TOO, है ना. यस, ये बिल्कुल ठीक बात है. डायबिटीज इंसिपिडिस का मतलब होता है insufficient, actually हमने अभी किडनी के बारे में पढ़ा था, नेफ्रॉन्स के बारे में, that reabsorption of every substance takes place at your tubules of the nephrons. तो जब आपका reabsorption कम हो जाएगा, आपके different tubules, आपके tubules will not able to reabsorption of water takes place. उस condition में आपकी you will have a excess urination. और जब हम excess urination करेंगे, definitely you'll have more of water, you'll have more thirst of water. तो उस डिसऑर्डर को हम डायबिटीज इंसिपिडिस बोलते हैं. मीन्स दैट इज इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ. अच्छा, ये क्यों होगा? क्यों रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा आफ्टर डिफरेंट टिब्यूल्स के? बिकॉज टिब्यूल्स में अभी हमने पढ़ा था रीएब्जॉर्प्शन होता है, पानी का भी रीएब्जॉर्प्शन वहीं होगा. तो अगर बॉडी आपका टिब्यूल्स रीएब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, तब इट विल हैपन कि पानी विल फ्लो आउट ड्यूरिंग यूरिनेशन एंड यूल हैव द एक्सेस, यूल हैव थर्स्ट फॉर एक्सेस वाटर. बिल्कुल ठीक बात है. ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट. रीजन क्या दिया हुआ है? ADH इज सीक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. देखो सही बात ये भी है. ADH इज व्हाट? ADH इज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन. एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, है ना. ADH को हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये हमारा वी नो दैट पिट्यूटरी हैव 2 lobes, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी. तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, है ना. न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स ऑफ योर हाइपोथैलेमस जो कि प्रोड्यूस करता है, एंड दैट इज वन इज दिस ADH वैसोप्रेसिन एंड द अदर इज ऑक्सीटोसिन. द अदर हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन. यहाँ पे उसकी कहानी नहीं है, बट यू शुड नो दैट द 2 हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी. तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ADH इज सीक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी. बिल्कुल ठीक बात. आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी दीज 2 हार्मोन्स सीक्रेट. ठीक है, तो ऑप्शंस दोनों, मतलब स्टेटमेंट्स बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट. बट इज ऑप्शन बी, आई मीन इज द रीजन, इज द करेक्ट रीजन ऑफ दिस असर्शन ऑफ द स्टेटमेंट नंबर 1? नो. अभी मैंने आपको बताया था. वाई नो? बिकॉज यू नो ADH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एट योर डिफरेंट टिब्यूल्स ऑफ द नेफ्रॉन्स. ठीक है, तो अगर ADH का सीक्रेशन कम होगा, तब पानी रीएब्जॉर्ब आप नहीं कर पाएंगे, और पानी जब आप रीएब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, एक्सेसिव यूरिनेट होगा एंड यू विल हैव थर्स्ट फॉर वाटर. ठीक है, तो अगर ऑप्शन में इस तरह से दिया होता है रीजन में, ड्यू टू द इनसफिशिएंट
or inadequate secretion of ADH by pituitary, posterior pituitary, तब आप इसको सही ऑप्शन मानते. If it is given like this, due to the insufficient secretion of ADH, because ADH is responsible for the absorption of the water during the different tubules of the kidney. ठीक है, लेकिन हमारे स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, रीजन में क्या दिया हुआ है कि yes it is secreted by the posterior pituitary. हाँ, तो होता है सीक्रीट, पर ये थोड़ी ना बताया हमको कि कम सीक्रीट हो रहा है. अगर कम सीक्रेट हो रहा है, ये कंडीशन बताते, तब इट विल बी द करेक्ट रीजन फॉर द assertion, that is statement number 1. So both the statements are individually correct, but reason is not the correct explanation of the A, that is assertion. ठीक है, समझ आ गई बात? तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी है ना. एक चीज और भी ध्यान रखना, ADH तब भी कम सीक्रेट होता है when a person is drunk, है ना. when a person is drunk having alcohol, तो उस टाइम पीरियड में भी ADH का सिक्रीशन कम होता है. and if a person is drunk, he'll have excess of urine, he'll pass excess of urine. Why? Because the secretion of the ADH goes less, and ADH is responsible for the reabsorption of water during the different tubules of the nephron. ठीक है, तो अगर क्वेश्चन इस टाइप से आएगा दैट वाई पर्सन इज हैविंग द एक्सेसिव यूरिनेशन ड्यूरिंग द अल्कोहलिज्म और अ पर्सन इज ड्रंक, तब भी रीजन यही होगा आपका, बिकॉज ऑफ द इनसफिशिएंट सीक्रीशन ऑफ ADH बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है, तो हम ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. Prolonged exposure to the fumes released by the incomplete combustion of coal may cause death of a human because of. अब हमें मालूम है कोल से क्या प्रोड्यूस होते हैं अगर इनकम्प्लीट कंबशन है. वेरी सिंपल, नो इट इज नॉट सी ज्येष्ठा. यू नो व्हेन देयर इज इनकम्प्लीट कॉम्बशन होगा तो एक्चुअली इनहेलेशन ऑफ द अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स उस केस में, ठीक है, दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट because there is incomplete combustion of the coal. तो generally क्या होता है, human inhale or inspire the unburned carbon particle. So that is more. Yes बेटा. मैम 9th में या 8th में हमने शायद पढ़ा था कि कार्बन मोनोऑक्साइड कैन बी पॉइजनस और ब्लड में उसकी एफिनिटी फिर ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसलिए. हाँ नहीं, you're right बेटा. कार्बन मोनोऑक्साइड इज एब्सोल्युटली पॉइजनस, है ना. और कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी विद हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू दी कार्बन डाइऑक्साइड, है ना. तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड कर जाता है तब एक तरीके का कंपाउंड बनता है जिसको हम बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन. यू राइट. एंड दिस इज अ वेरी स्टेबल कंपाउंड. स्टेबल मीन्स, अब क्योंकि ये स्टेबल है, इट डज नॉट अलाउ हीमोग्लोबिन टू गेट फ्री. तो आप देखो ना, अगर हीमोग्लोबिन फ्री नहीं होगा तब क्या हो जाएगा, आपका हीमोग्लोबिन विल नॉट बी फ्री, इट विल नॉट एबल टू कैरी द ऑक्सीजन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. डेफिनेटली इट विल लीड टू फेटल, है ना, इट विल लीड टू डेथ, इट विल बी अ फेटल फॉर अ बॉडी. ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ द कोल. तो दैट विल रिजल्ट इन दी अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स. ठीक है, तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड एक डिफरेंट कहानी हो गई. अगर हम उसे इनहेल करेंगे तो डेफिनेटली इट विल बी बिग प्रॉब्लम फॉर अस, बिकॉज रिजल्टेंट विल बी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन विच इज अ स्टेबल कंपाउंड. बट हम अगर कोल के इनकम्प्लीट कंबशन की बात कर रहे हैं तो उस वक्त क्या रिलीज हो रहा है, अनबर्न कार्बन पार्टिकल. तो उसके इनहेलेशन से हमको वील हैव प्रॉब्लम एंड कैन इवन लीड टू डेथ. ठीक है बेटा. सो दैट इज वाई आवर ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. Yes, ma'am. ओके बच्चा. सो आई गेस दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर NTSC स्टेज 2. एंड यू नो ऑन द बेसिस ऑफ दीज क्वेश्चंस, अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस करोगे, यू विल फाइंड कि सिर्फ 9th 10th का सिलेबस नहीं है जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं. देयर आर मेनी मोर क्वेश्चंस विच इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ 11th एंड 12th. बहुत ज़्यादा नहीं जाना हमको, लेकिन थोड़ा अपर लेवल ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि NTSC स्टेज 1 इज़ क्वाइट ईजियर एज कम्पेयर टू द NTSC स्टेज 2. तो आप क्योंकि इस NTSC स्टेज 1 क्रैकर हो, आपको मालूम है किस टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं. एंड वी आर डूइंग सो मच क्वेश्चंस इन द प्रीवियस सेशंस ऑल्सो. आई ब्रॉट सो मच क्वेश्चंस फॉर यू ऑन बायो सब्जेक्ट. तो यू मस्ट हैव एन आइडिया कि हमको कितना अपर लेवल जाना है फॉर NTSC स्टेज 2 फॉर साइंस सेक्शन बायोलॉजी. तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है. अभी हमारे पास पूरा 1 महीना है फॉर योर NTSC स्टेज 2.
आप इसको इसी तरह से प्रैक्टिस करो. आई विल bring more questions on the topics, different topics, and a major topics which is actually there in your NTSC stage 2, like human physiology, plant physiology, genetics, and biomolecules. These are the major topics. Generally the questions are from these one. So please go through these topics, not in very much detail, but to that detail which is necessary for the exam. So I guess this is all for today's session. आप लोग को समझ आई होगी बात हमें कैसे पढ़ना है. And if you people find this video in any way fruitful, do like it and subscribe it and share with your friends. That's all for today's class. Thank you all.